السلام علیکم ناظرین۔ کمانڈو رحیم نے اسٹین گن اتار کر دیوار سے لٹکائی، کمبل کی بکل مار لی اور کوٹھڑی سے نکل گیا۔ میں نے اورنگزیب سے اس خدشے کا اظہار کیا کہ بریگیڈیئر اگر گھر پر نہ مل سکا، اور ہم نے گھر والوں سے کہا کہ بریگیڈیئر سے کہو کہ فوراً گھر پہنچے، ہم اس کی بیٹی کے بارے میں اسے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اسی دوران ملٹری انٹیلیجنس ایسا انتظام ضرور کر لے گی کہ بریگیڈیئر سے فون پر بات کرنے کے دوران وہ معلوم کر لیں گے کہ یہ فون کہاں سے کیا جا رہا ہے۔ بریگیڈیئر جان بوجھ کر فون پر گفتگو کو تول دے گا تاکہ ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی جہاں سے ہم فون کر رہے ہیں وہاں پہنچ کر ہمیں پکڑ لے۔ کمانڈو اورنگزیب نے کہا، یہ بات میرے ذہن میں ہے، لیکن ہمارے سامنے دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ ہم وائرلیس پر اس سے بات نہیں کر سکتے، مجبوراً ہمیں ٹیلی فون کا ہی سہارا لینا ہوگا۔ یہ خطرہ مول لینا ہی پڑے گا، مگر ہم مختصر بات کریں گے اور ہر بار کسی نئی جگہ سے ٹیلی فون کریں گے۔ شملہ ایک بڑا شہر ہے، یہاں اتنی جلدی فون سپاٹ چیک نہیں کیا جا سکے گا۔ اتنے میں سغراں تہ خانے سے اوپر آئی اور کہنے لگی، میں نے لڑکی کو کھلا پلا دیا ہے، وہ بیچاری تو بے حد ڈری ہوئی ہے، بس روئی جاتی ہے۔ میں نے کہا، اس کے رونے پر ترس مت کھانا، بس جس طرح بھی ہو سکے 2-3 دن تک تہ خانہ میں ہی رکھنا اور زندہ رکھنا۔ سغراں چارپائی سے ایک چادر اٹھا کر زینے کی طرف جاتے ہوئے بولے، میرے ہوتے ہوئے وہ نہ یہاں سے باہر قدم نکال سکتی ہے نہ مر سکتی ہے۔ ہمارے لیے ایک ایک لمحہ گزرنا مشکل ہو رہا تھا۔ قدرتی طور پر ہم اس لیے بے چین تھے کہ ہمیں جتنی جلدی ہو سکے ارملا کے باپ بریگیڈیئر مکھرجی سے رابطہ پیدا کرنا تھا تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد رحیم کمانڈو واپس آیا۔ وہ شملے میں اپنے ماسٹر سپاہی شمس خواجہ سے مذاکرات کر کے آیا تھا۔ کہنے لگا، شمس خواجہ نے مجھے بریگیڈیئر کے گھر کا ٹیلی فون نمبر دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں شملے کے بڑے پوسٹ آفس سے پہلا فون کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ضروری ہوا تو ہمیں بڑے گرجا گھر کے پاس جو پبلک ٹیلی فون بوتھ ہے وہاں سے ٹیلی فون کرنا ہوگا۔ اس نے تاکید کی ہے کہ ہمیں اسی جگہ بدل بدل کر فون کرنا چاہیے، مگر اس نے ایک بات کی سختی سے ہدایت کی ہے کہ بریگیڈیئر سے کسی صورت بھی لمبی بات نہیں کرنی ہوگی اور معاملہ 1-2 ٹیلی فون کال میں طے کر لینا ہوگا۔ کمانڈو رحیم نے صدری کی جیب سے ایک کاغذ کا پرزہ نکال کر دیا۔ اس پر بریگیڈیئر کے گھر کا فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ اورنگزیب نے کاغذ کو سنبھال کر رکھ لیا اور کمانڈو رحیم سے کہا، ہم جنرل پوسٹ آفس بریگیڈیئر کے گھر فون کرنے جاتے ہیں، تم یہاں کا خیال رکھنا۔ ہم نے کمانڈو والی جرسیاں جو صبح پہن لی تھیں اتار دیں، سیاہ جوگر شوز کی جگہ ہم جوتے پہن لیے، جیکٹس بھی اتار دیں، ان کی جگہ ایک پرانی گرم چادر کی بکل مار لیا۔ اتنا ضرور کیا تھا کہ ہم نے ایک سائلنسر والا آٹومیٹک پستول اپنی پتلون کی جیب میں چھپا کر ضرور رکھ لیا تھا۔ میں نے سر پر مفلر لپیٹ لیا۔ کمانڈو اورنگزیب نے ان کی بنی ہوئی ٹوپی پہن لی۔ اس طرح ہم تہ خانے والی کوٹھی سے نکل کر اس کے پیچھے سے چکر کاٹ کر قبرستان کے سامنے والی سڑک پر نکلے۔ بوندا باندی رک گئی تھی، سرد ہوا چل رہی تھی۔ ہم بڑے سکون کے ساتھ آپس میں شملے میں بولی جانے والی ڈوگری ہندی میں باتیں کرتے چلے جا رہے تھے، جیسے بارش رکنے کے بعد شہر کے بازار میں کچھ خرید و فروخت کرنے جا رہے ہوں۔ قبرستان سے ہم ایک ٹیلے کی چڑھائی چڑھ کر چھوٹی سی پختہ سڑک پر آ گئے جو شملے کے چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن کے عقب سے ہوتے ہوئی مال روڈ کے چوک کی طرف نکل جاتی تھی۔ ہم اسے خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ کوئی شخص ہمارے سامنے آ رہا ہوتا یا پیچھے سے آگے گزر جاتا تو ہم ڈوگرا ہندی میں باتیں کرنے لگتے۔ ہمیں دیکھ کر کسی کو خیال نہیں آ سکتا تھا کہ ہم 2 انتہائی خطرناک اور تربیت یافتہ کمانڈو ہیں اور بریگیڈیئر کی بیٹی کو ہم نے ہی اغوا کیا ہے۔ شملے کی مال روڈ کے چوک میں ایک طرف بڑے ڈاک خانے کی انگریزی طرز کی شاندار عمارت تھی۔ مال روڈ پر کافی لوگ آ جا رہے تھے، دکانیں کھلی تھیں۔ ہم ایک مندر کے قریب سے گزرے جس کی دیوار پر کتنے ہی بندر بیٹھے مزے سے کچھ کھا رہے تھے۔ شملے میں بندر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہندو لوگ ان بندروں کو مقدس جانور سمجھتے ہیں اور ان کو مٹھائیاں اور پھل کھلاتے ہیں۔ اس کی تاریخی وجہ یہ ہے کہ جب رام اور لکشمن سیتا کے ساتھ بنواس میں تھے تو لنکا کا راجا راون رام چندر راجا کی بیوی سیتا کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ رام چندر نے اپنی بیوی کو چھڑانے کے لیے لنکا پر چڑھائی کی تو ہنومان نام کے ایک شخص نے اپنے پورے قبیلے کی فوج کے ساتھ راجا رام چندر کی مدد کی تھی۔ کہتے ہیں ہنومان کا تعلق جس قبیلے سے تھا اس کے لوگوں کی شکلیں بندروں سے ملتی جلتی تھیں،
इस वजह से हिंदू लोग बंदरों की इज्जत करते हैं और उन्हें कभी कुछ नहीं कहते। शिमले के आसपास के इलाके में बंदर घरों में बड़ी आज़ादी से दाखिल होते हैं और जो चीज़ चाहे उठा कर ले जाते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। बहरहाल हम बड़े डाक खाने में पहुंच गए। डाक खाने के अंदर 4-5 शीशे के बंद टेलीफोन बहुत बने हुए थे। एक टेलीफोन बहुत खाली था। मैं और कमांडो औरंगजेब बोथ में दाखिल हो गया। हमने शीशे का दरवाज़ा बंद कर दिया। औरंगजेब ने जेब से वो कागज़ निकाल कर सामने रख लिया जिस पर ब्रिगेडियर मुखर्जी के घर का टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। फिर उसने नंबर डायल कर दिया। मैं उसी की तरफ देख रहा था। औरंगजेब ने कहा, हेलो, मैं ब्रिगेडियर मुखर्जी से बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड खामोश रहने के बाद औरंगजेब ने पूछा, अगर आप ही ब्रिगेडियर मुखर्जी बोल रहे हैं तो मैं आपको ज़रूरी पैगाम देना चाहता हूँ। गौर से सुनिए। आपकी बेटी हिरमला मुखर्जी हमारी तहवील में है। उसकी इज़्ज़त आबरू महफूज है। ये बात आपके इल्म में होगी कि श्रीनगर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल भगत राम ने बुजुर्ग कश्मीरी मुजाहिद हाजी सनाउल्लाह की बेटी परवीन को अगवा करके शिमले के फौजी गरीजन में पहुंचा दिया हुआ है। नहीं नहीं, खामोश रहें, सिर्फ मेरी बात सुने। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी बेटी को जिंदा हालत में वापस लेना चाहते हैं तो परवीन को हमारे हवाले कर दें। इस सिलसिले में जगह और वक्त का तयन बाद में कर लिया जाएगा, लेकिन एक बात को गौर से सुन लें, इस मामले में दोनों तरफ से इंतहाई राजदारी से काम लिया जाएगा। अगर आपने मिलिट्री पुलिस या मिलिट्री कमांडो फोर्स या शिमला पुलिस की मदद लेने की कोशिश की तो हमारा आदमी ज़रूर पकड़ा जाएगा, लेकिन फिर आपकी बेटी हिरमला भी जिंदा नहीं रहेगी। उसका कटा हुआ सर आपके घर बड़ी जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। मेरे दूसरे फ़ोन कॉल का इंतज़ार करें। यह कहकर औरंगजेब ने फ़ोन बंद कर दिया और मुझसे कहा, यहाँ से निकल चलो। हम टेलीफोन बोत में से बज़ाहिर बड़े इत्मीनान से ऐसा ऐसा मुस्करा कर बातें करते बाहर निकले। इस तरह बातें करते पोस्ट ऑफिस की लॉबी में मौजूद लोगों के दरमियान से गुजरते हुए जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत से निकलकर सीढ़ियाँ उतरते मॉल रोड के चौक में आ गया और फिर बाएं जाने वाली छोटी सड़क पर हो गया। छोटी सड़क पर आते ही हमने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। यहाँ से एक पगडंडी नीचे पहाड़ी ढलान पर उतरती थी। हम उस पगडंडी पर उतर गया। वापस अपनी कब्रिस्तान के पिछवाड़े वाली कोठड़ी में आकर औरंगजेब ने कमांडो रहीम को टेलीफोन पर ब्रिगेडियर मुखर्जी से की गई गुफ्तगू के बारे में बताया और कहा कि ब्रिगेडियर के घर में हमारी राजदार नौकरानी को फौरी तौर पर पैगाम पहुंचा दो कि वो घर में आने जाने वाले लोगों और फौजी अफसरों से टेलीफोन पर की जाने वाली बातचीत गौर से सुनते रहे। हमें हर रात को मालूम हो जाना चाहिए कि ब्रिगेडियर मुखर्जी अपनी बेटी को वापस लाने के सिलसिले में क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है। कमांडो रहीम ने कहा, यह काम हो जाएगा। हमने सारा दिन टिब्बे वाली कोठड़ी में गुजार दिया। इस दौरान निर्मला को जाकर बता दिया कि उसके पिताजी से बात हो गई है। जिस वक्त परवीन श्रीनगर पहुंचा दी जाएगी उसे उसके बाप के हवाले कर दिया जाएगा। जब रात का पहला पैर शुरू हुआ तो मैं और कमांडो औरंगजेब ब्रिगेडियर मुखर्जी को दोबारा फ़ोन करने कब्रिस्तान के वीरान इलाके से निकलकर शिमले के बड़े गिरजा के हकम में जो पब्लिक टेलीफोन बूथ बना हुआ था वहां पहुंच गया। कमांडो औरंगजेब ने मुखर्जी को फ़ोन किया तो वो घर पर ही था। उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई। कोई 1 मिनट तक बात होती रही। बात हो रही थी कि कमांडो औरंगजेब ने कहा, मिस्टर मुखर्जी, मैं आपको कल शाम तक की मोहलत देता हूँ। अगर कल शाम तक आपने हाजी सनाउल्लाह साहब की बेटी परवीन को अपने हिफाजती स्क्वाड के साथ श्रीनगर रवाना न किया तो उसका जो अफसोसनाक नतीजा निकलेगा वो शायद आपसे बर्दाश्त न हुआ। ये कहकर औरंगजेब ने फ़ोन बंद कर दिया। कहने लगा, ब्रिगेडियर अपनी मजबूरियां बयान कर रहा था कि परवीन उसकी कस्टडी में नहीं है, उसे निकालना उसके इख्तियार में नहीं है। रास्ते में कई मुश्किलात हायल हैं। आप मेरी बेटी को छोड़ दें। आप जितनी रकम कहते हैं मैं आपको दे दूंगा और किसी से जिक्र भी नहीं करूंगा। मैंने कहा, यह बात मेरे जहन में भी वाज़ेह नहीं है कि एक जिम्मेदार ब्रिगेडियर रैंक का अफसर दूसरी रेजिमेंट के हाउस अरेस्ट में रखी गई लड़की को कैसे निकाल कर श्रीनगर पहुंचाएगा। कमांडो औरंगजेब ने सख्त लहजे में कहा, यह सोचना हमारा काम नहीं है। ये हमारा दर्द सर नहीं है, ये उसका दर्द सर है। एक गैर शादीशुदा नौजवान बेटी का बाप है जो अगवा की जा चुकी है। उसकी ज़िंदगी और इज्जत से आतिशफशां पहाड़ के धियाने के ऊपर लटक रही है। मैंने उसे कल शाम तक का अल्टीमेटम दे दिया है।
मुझे यकीन है कि वो आउट ऑफ द वे जाकर भी अपनी बेटी की ज़िंदगी और आबरू बचाएगा। हम जल्दी जल्दी एक टीले की उतर रहे थे। रात गुजर गया। दूसरा दिन भी ज़हनी कशमकश की हालत में गुजर गया। हम कब्रिस्तान वाली कोठरी में ही छुपे बैठे रहे। जब सूरज गरूब हो गया और शाम के साय फैलने लगे तो मैं और कमांडो औरंगजेब एक बार फिर ब्रिगेडियर को फ़ोन करने के लिए कोठरी से निकल पड़े। इस दफ़ा हमने शिमले के एक दूसरे इलाके में जाकर पब्लिक टेलीफोन बूथ फ़ोन किया। ब्रिगेडियर घर पर मौजूद था। मैं बूथ के बाहर खड़ा था। औरंगजेब बूथ में जाकर फ़ोन करने लगा। वो 1 मिनट से ज़्यादा फ़ोन पर बात नहीं करता था। इस बार वो आध मिनट के अंदर अंदर फ़ोन बंद करके बाहर आ गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात थे। कहने लगा, ब्रिगेडियर परवीन को हमारे हवाले करने पर तैयार है। मैंने औरंगजेब का हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा, खुदा का शुक्र है हमारा मिशन नाकाम नहीं हुआ। हम रात के बढ़ते हुए अंधेरे में पहाड़ी टीले के साथ जा रहे थे। अब हमें कल का दिन यानी दूसरा और तीसरा दिन तजस्सुस और तजब्जुब की हालत में गुजारना था। हमने इरमला मुखर्जी को कुछ न बताया। दूसरा दिन गुजर गया। दूसरी रात भी गुजर गई। तीसरे दिन सुबह के वक्त हमने कमांडो शेरवान से अपने खुफिया रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए रब्ता किया तो उसने इंतहाई मुसरत के साथ हमें यह खुशखबरी सुनाई कि हाजी सनाउल्लाह डार की बेटी परवीन आज सुबह ठीक 6:10 पर अपने घर खरिया से पहुंच गई है। कमांडो शेरवान ने मजीद बताया कि उसे 2 औरतें टैक्सी में घर छोड़ गई थीं। कमांडो औरंगजेब ट्रांसमीटर पर शेरवान से बात कर रहा था। उससे मैंने भी बात किया। उसने मुझे भी मिशन की कामयाबी पर मुबारकबाद दिया और कहा, ब्रिगेडियर की बेटी को इंतहाई होशियारी के साथ उसके घर के करीब छोड़ देना। कहीं ऐसा ना हो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने तुम लोगों की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा रखा हो। मैंने कहा, हम मोहतात रहेंगे और तुम वापस मेरे पास आ जाना। एक और मिशन के सिलसिले में तुमसे गुफ्तगू करनी है। मैंने कहा, मैं पहुंच जाऊंगा सर। रेडियो ट्रांसमीटर के सिग्नल बंद हो गया। मैंने कमांडो शेरवान की हिदायत कमांडो औरंगजेब को भी बता दिया और वो कहने लगा, हम इरमला को अपनी खुफिया कमीगाह के आसपास नहीं छोड़ सकते। इससे हमारी कमीगाह का सुराग लग सकता है। मैंने कहा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? हम उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर रात के वक्त कोठरी से निकालेंगे और शिमला सोलन रोड पर जाकर छोड़ेंगे। वहाँ से शिमले का पहाड़ी रेलवे स्टेशन करीब ही है। इरमला वहाँ से घर फ़ोन कर देगी और उसके घर वाले उसे आकर वहाँ से ले जाएंगे। हम अपनी कमीगाह यानी कब्रिस्तान वाले मलबे की कोठरी में आकर हमने कमांडो रहीम को बता दिया कि इरमला को हम आज रात आज़ाद कर रहे हैं। परवीन अपने घर श्रीनगर पहुंच गई है। कमांडो रहीम ने भी खुदा का शुक्र अदा करते हुए खुशी का इजहार किया। ये मुजाहिदीन कश्मीर और कश्मीरी कमांडोज की बहुत बड़ी फतह और भारतीय गासे फौज की शिकस्त थी। मैं और कमांडो औरंगजेब नीचे तय खाने में गया और इरमला को बताया कि आज रात उसे अपने घर पहुंचा दिया जाएगा। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गया। कमांडो औरंगजेब ने कहा, तुम्हारे बद किरदार दरिंदा फौजी कश्मीर में मुसलमान कश्मीरी खवातीन के साथ जो बदतरीन सलूक कर रहे हैं, हमने तुम्हारे साथ वैसा सलूक नहीं किया। अपने बाप को जाकर बता देना कि तुम घर से जिस तरह उठाई गई थी उसी तरह इज्जत अबरू के साथ वापस ही हो और कश्मीरी कमांडोज ने तुम्हारे साथ शरीफ और बाइखलाक इंसानों जैसा सलूक किया है। बंगाली लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, मैं ऐसे ही जाकर कहूँगी, तुम लोगों ने जिस शराफत का सबूत दिया है मैं इसे कभी फरामोश नहीं करूँगी। तुम लोगों ने साबित कर दिया है कि इस्लाम दुनिया का सबसे आला तरीन मज़हब है। हमने ब्रिगेडियर की बेटी इरमला से कहा कि वो तैयार रहे। हम रात के शुरू होते ही उसे यहाँ से लेकर चल देंगे। वो सारा दिन भी मैंने औरंगजेब के साथ कमांडर रहीम की कमीगाह में गुजारा। रात को खाना खाने के बाद हमने तैयारी शुरू कर दी। कमांडर औरंगजेब कहने लगा, कुछ पता नहीं रास्ते में किस किस्म के हालात पेश आ जाएं। हमें अपनी तरफ से थोड़ी बहुत तैयारी करके निकलना होगा। कमांडो रहीम बोला, हम आपके साथ चलेंगे। औरंगजेब ने कहा, नहीं, ज़्यादा आदमी होंगे तो शक पड़ सकता है। हम दोनों ही काफ़ी हैं। नकाब वाली सियाह कमांडो जर्सियाँ पहनने की ज़रूरत नहीं थी। हमने सिर्फ पतलूने और जैकेटें पहन ली। एहतियात के तौर पर कमांडो चाकू और ऑटोमेटिक पिस्तौलें मैगजीन भर कर रख ली। रात के 9:30 बज रहे थे जब मैं और कमांडो औरंगजेब हम ब्रिगेडियर की बेटी इरमला मुखर्जी को लेकर अपनी खुफिया कमीगाह से निकले। हमने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक चादर इस तरह उड़ा दी थी कि सिर्फ उसका चेहरा थोड़ा सा नजर आता था। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे साथ साथ चला रहा था
क्योंकि आंखों पर पट्टी बंदी होने की वजह से वो देख नहीं सकती थी। कमांडो औरंगजेब मेरे ज़रा आगे आगे चल रहा था। हम गैराबाद पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए एक खाली सड़क पर ऊपर निकले। हमारी एक जानब जरा नीचे शिमले की माल रोड की बत्तियां जगमगा रही थीं। कमांडो औरंगजेब वहां कर एक छोटे से रास्ते पर मुड़ गया। यहाँ कुछ फासले पर कोठियां थीं जिनमें रोशनी हो रही थी। इरमला ने कहा, मेरी आंखों को खोल दें प्लीज़। कमांडो औरंगजेब बोला, थोड़ी देर इंतज़ार करो। हम तंग पहाड़ी रास्तों से निकलकर एक और सड़क पर चढ़े। ये थोड़ी कुशाद और पुख्ता सड़क थी। औरंगजेब ने मुझसे कहा, हम इसे वहाँ जो सिग्नल की रोशनी है उसके करीब छोड़ देंगे। फिर उसने इरमला से कहा, हम इस वक्त शिमला सोलन रोड पर स्टेशन के करीब आ गए हैं। आगे स्टेशन के सिग्नल की बत्ती है, हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। तुम अपने घर स्टेशन पर से फ़ोन कर देना, वो लोग तुम्हें आकर ले जाएंगे। हम सिग्नल की बत्ती की तरफ चलने लगे। ज़रा आगे गए थे कि एक साधु सामने से आकर हमें घूर कर देखते हुए बोला, ये किसकी धर्मपति है बालक? कमांडो औरंगजेब ने कहा, जाओ बाबा अपना रास्ता लो। साधु मुस्कुराता हुआ आगे चल दिया। अचानक मुझे याद आ गया कि जिस वक्त हम अपने हाइड आउट से निकलकर पक्की सड़क पर आए थे तो मैंने इस साधु को वहां से भी देखा था। वो एक तरफ बिजली के खंभे के नीचे बैठा जाप कर रहा था, मगर उसने हमारी तरफ बड़े गौर से देखा था। मैंने जब इस बात का जिक्र औरंगजेब से किया तो वो रुक गया। उसने पलटकर साधु जिस तरफ गया था उस तरफ देखा, मगर वहाँ साधु नहीं था। सड़क बिल्कुल सीधी थी और बिजली के खंभों पर बल्ब भी रोशन थे, मगर साधु कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। मैंने औरंगजेब से कहा, दोस्त, मुझे किसी आने वाले खतरे की बू महसूस हो रही है। लड़की को यहीं छोड़कर वापस चलते हैं। मगर कमांडो औरंगजेब को भी इतना तजर्बा नहीं हुआ था जितना तजर्बा मैं अपनी कमांडो जिंदगी में हासिल कर चुका था। इसकी छठी हिस्स ने भी बेदार होना शुरू नहीं किया था। कहने लगा, कोई आम साधु होगा। यहाँ इस किस्म के साधु लोग रास्ते में आम मिल जाया करते हैं। लेकिन मेरी छठी हिस्स यूं ही बेदार नहीं हुआ करती थी। मेरी छठी हिस्स ने मुझे बता दिया था कि कोई ज़बरदस्त मुसीबत नाजिल होने वाली है। अब कमांडो औरंगजेब मेरे आगे आगे इरमला को साथ लिए चल रहा था। हम इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि यह साधु कोई आम साधु नहीं था, बल्कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी था। और इसने जब पहली बार हमें शिमले की ऊपर वाली सड़क पर बिजली के खंभे के करीब से गुजरते देखा था तो मिलिट्री हेडक्वार्टर को उस वक्त वायरलेस के जरिए इतला कर दी थी कि दो मशकूक आदमी एक औरत को लेकर शिमला सोलन रोड की तरफ जा रहे हैं। और उसी लम्हे मिलिट्री कमांडो फोर्स का मुसल्ला दस्ता जीप में सवार होकर शिमला सोलन रोड पर पहुंच गया था और उन्होंने हमें घेरे में ले लिया था। और घेरे में लिए सड़क की दोनों जानब अंधेरे में हमारे साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्हें सिर्फ इस बात का इंतज़ार था कि हम कब ब्रिगेडियर की बेटी को अपने से अलग करते हैं। इसके बाद उन्होंने हम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देनी थी। लड़की की मौजूदगी में वो हम पर अटैक करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। उन्हें यह भी मालूम था कि हम कोई मामूली आदमी नहीं हैं, बल्कि कमांडोज हैं और हम इस वक्त लड़की को हलाक कर देने की पोजीशन में हैं। मेरे असाब तन गए थे क्योंकि मुझे महसूस होने लगा था कि खतरा हर कदम पर हमारे करीब आ रहा है। मैं न रह सका। मैंने औरंगजेब से कहा, लड़की को छोड़कर वापस भाग चलो। उसने मेरी बात पर कोई तवज्जो न दिया। हम रेलवे सिग्नल की बत्ती के करीब आ गए थे और एक जानब ऊपर रेलवे लाइन वाली सुरंग की बत्ती भी नजर आने लगी थी। मुझे अपनी दाएं जानब सड़क के नीचे झाड़ियों में ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे कोई दबे पांव झाड़ियों में चल रहा हुआ। मैं रुक गया। कमांडो औरंगजेब मुझसे 4-5 कदम आगे हो गया था। वो भी रुक गया। उसने लड़की को कुछ कहा और जैसे उसे छोड़कर वापस हुआ, हम पर चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। मैं सड़क पर लेट गया। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर दोनों हाथों में लिया और दाएं बाएं फायरिंग करने लगा। मैंने देखा कमांडो औरंगजेब ने भी पिस्तौल निकाल लिया था और दौड़कर लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की को आड़ बनाकर वहां से निकलना चाहता था, मगर इस दौरान सामने से एक फौजी जीप मशीन गन का फायर करती तेजी से नमोदार हुई। दो फौजी छलांग लगाकर नीचे कूदे। उन्होंने लड़की को पकड़कर जीप में डाला और जीप हम पर फायर करते उल्टी चल पड़ी। मैंने कमांडो औरंगजेब को सड़क पर गिरते देखा। शायद उसे गोली लग गई थी। मुझ पर दोनों तरफ से फायर आ रहा था। मैंने सड़क पर लेटे लेटे पिस्तौल में नया मैगजीन भरा और जितनी तेज़ी से हाथों को घुमा सकता था
घुमा घुमा कर सड़क की दोनों जानब अंधेरे में फायर करने लगा। इसके साथ ही मैं उठा, सड़क पर झुककर पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। किसी फौजी ने चिल्लाकर कहा, तुम हमारे घेरे में आ चुके हो, हथियार फेंक कर हाथ खड़े कर दो। मेरे पिस्तौल के मैगजीन में भी काफ़ी गोलियां थीं। मैं फायर करता गया और सड़क पर दाएं बाएं होकर भागता चला गया। सड़क के नीचे झाड़ियों के अंधेरे में इसलिए नहीं जा रहा था कि फायर उसी तरफ से आ रहा था। ऊपर झाड़ियों में से मशीन गन का ब्रस्ट मेरे बिल्कुल करीब सड़क पर पड़ा। मैं समझ गया कि ये लोग मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हैं, वरना भारतीय फौजी जो यकीनी तौर पर कमांडो फोर्स थे, इतने अनाड़ी नहीं थे कि टारगेट 10 कदमों के फासले पर हो और वो निशाना न लगा सकें। गोलियां मेरे दाएं बाएं ऊपर और पीछे पड़ रही थीं। साथ साथ मेगाफोन पर मुझे हथियार डालने के लिए कहा जा रहा था। कमांडो दुश्मन की जद में आ जाए तो आमतौर पर उसे हलाक करने की बजाय जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाती है, क्योंकि एक कमांडो से बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हो सकती हैं। मैंने भी दुश्मन के हाथ न आने का फैसला कर लिया हुआ था। जब मुझे यकीन हो गया कि ये मुझे मरना नहीं चाहते तो मैंने सड़क पर पीछे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। अब सामने से एक ब्रस्ट आया जो बिल्कुल मेरे आगे आकर पड़ा। मैं समझ गया कि ये लोग मेरी टांगों पर ब्रस्ट मारकर मुझे जख्मी करके गिराना चाहते हैं। पहाड़ी सड़क बिल्कुल ऐसी थी जैसी हमारे कोहमरी में सनी बैंक के करीब है। सड़क एक तरफ को मुड़ गई। मैं दौड़कर आगे गया तो अचानक सामने से एक फौजी जीप की तेज रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी और जीप इतनी तेजी से आई जैसे मेरे ऊपर चढ़कर मुझे कुचल देगी। जीप के अगले टायर का बम्पर लगा और मैं गिर पड़ा। सर उठाकर देखा, 4 फौजी जवान स्टेन गन्ने ताने मेरे ऊपर खड़े थे। मैं अब कुछ नहीं कर सकता था। मेरा पिस्तौल छीन कर उसी वक्त मेरे हाथ पीछे बांध दिए गए। मेरी तलाशी ली गई। मेरे पास जो कुछ था सब निकाल लिया गया और मुझे घसीटते हुए जीप में डाल दिया गया। 2 फौजी मेरे दाएं बाएं मुझे दबोच कर बैठ गया। जीप ऊपर शिमला के मेन बाजार की तरफ तेजी से बढ़ी। इस दौरान पहलू की जानिब झाड़ियों से दूसरे फौजी भी बाहर निकल आए थे। उनकी जीप जरा आगे खड़ी थी। ये जीप भी हमारे पीछे पीछे चल पड़ी। मैं भारतीय फौजियों का कैदी बन चुका था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि अब मुझे गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा और मुझसे मेरे दूसरे साथी मुजाहिदों और कश्मीरी कमांडोज के बारे में पूछा जाएगा। मुझे अजीतें देकर ख़ास तौर पर मुझसे उस खुफिया कमीगा के मुतालिक पूछा जाएगा जहां हमने ब्रिगेडियर की बेटी को यरगमाल बनाकर छुपाया हुआ था।